तेलंगाना के वजीर आला रियोनथ रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि राम का नाम जपने वाले बीजेपी लीडर दरअसल दिन रात असद अल्दीन ओवैसी का नाम जपते हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि बीजेपी ओवैसी को एक हुआ बनाकर पेश करती है ताकि अवाम में खौफ पैदा करके सियासी फायदा हासिल किया जा सके, जो कि उनकी ज़हनी पसमानदगी की अलामत है। रियोनथ रेड्डी ने वाज़े किया कि MIM एक जमहूरी पार्टी है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी की इस तकसीम कारी की सियासत को समझें और तरक्की के नाम पर वोट दें ताकि रियासत में अमन व अमान बरकरार रहे। वजीर आला के बकौल बीजेपी के पास दुखाने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वो बार बार हैदराबाद और ओवैसी का जिक्र करके असल मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना के लोग होशियार हैं और वो फ़िरक़ा परस्त ताकतों को बल्दियाती इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। రాముడి పేరు చెప్తారు కానీ రోజు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకే. వీళ్ళ లైఫ్ లైన్ అంటారు కదా, వీళ్ళ లైఫ్ లైనే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఆయన పేరు లేకుండా, ఆయన జపం లేకుండా రాముడి పేరు ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు తలుచుకున్నారో, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేరు ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నారో చూడండి. ప్రతిసారి అసదుద్దీన్ ఓవైసీని అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంగా మార్చుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మరి అన్ని మీ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి కదా. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంత దుర్మార్గుడు అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు అతన్ని నియంత్రించలేకపోతున్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో ఏఐఎంఐఎం కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. గెలిచిన దగ్గర వాళ్ళు గెలిచినారు, ఓడిన దగ్గర ఓడినరు. వాళ్ళు గుజరాత్లో పోటీ చేసిరు, ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీ చేసిరు, బీహార్లో పోటీ చేసిరు, మన వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా పోటీ చేసి 5 సీట్లు గెలిచిరు. వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయ సంస్థ, ఒక రాజకీయ పార్టీ. కానీ వాళ్ళని భూతంగా చూపించి ఇంకెంతకాలం మీరు ఓట్లు అడుగుతారు? కాబట్టి కేవలం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి కొన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను భూతంగా చూపించి రాజకీయ మనుగడ సాధించాలని ఆలోచన చేయడమే వాళ్ళ భావ దారిద్ర్యానికి పరాకాష్ట. ఈ భావ దారిద్ర్యాన్ని చూసి బీజేపీకి ఓటు వేయాలన్న తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. वजीर आला चंदर बाबू नायडू ने सरकारी हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलियात के फुकदान और तालिब इल्मों की गिरती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एतराफ़ किया है कि इन इदारों में मसाइल हकीकत हैं। उन्होंने हालिया वाक़ये का हवाला देते हुए कहा कि कल भी हॉस्टल के कई बच्चे अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से बीमार हुए, जो कि इंतज़ामिया की संगीन लापरवाही का सबूत है। वजीर आला ने वाज़े तौर पर इंतबाह जारी किया है कि आइंदा अगर किसी भी हॉस्टल में तालिब इल्मों को सेहत के मसाइल पेश आते हैं तो इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी मुताल्लिका इज़ला के कलेक्टर्स और वज़रा पर आयद होगी। उन्होंने हुक्काम को हुक्म दिया कि वो हॉस्टल्स के खाने के मेयार और सफाई सुथराई के इंतज़ामात का फौरी जायज़ा लें ताकि मासूम बच्चों की जानों को ख़तरे में पड़ने से बचाया जा सके। नायडू ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा हुए तो ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंतहाई सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का मकसद गरीब तालिब इल्मों को एक महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करना है और इस मामले में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ఆర్టీజీఎస్ కూడా చెప్పాలి, పంచాయత్ రాజ్ గాని, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గాని, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గాని, సోర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్ వరకు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రియారిటీ. రెండోది, ఏ బోర్స్ అయితే సరిగా లేవో, బోర్స్ ఇంకా వాడుతూ ఉంటే ఆ సోర్సెస్ కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసి కంటామినేషన్ ఉంటే ఫ్లషింగ్ చేయాలి, లేకపోతే కండెమ్ చేయాలి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నేను నిన్న ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో చూశాను. నిన్న కూడా నేను వెరీ క్లియర్, ఆల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా కేర్ఫుల్ గా ఉండి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ట్రైబల్ నిన్న కూడా ఒక ఊర్లో కంటామినేషన్ వచ్చి పిల్లలంతా హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు. అది షుడ్ నాట్ రిపీట్ అవుతుందంటే మంత్రి గాని సెక్రటరీ గాని యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. యూ డౌన్ బిలో యూ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎవ్రీథింగ్. అదర్వైజ్ ఇది కంటిన్యూ జరిగితే మాత్రం సీరియస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఉంది సార్, వాటిని ఇమీడియట్ సస్పెండ్ చేసేసాం సార్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో నో, అవసరమైతే కొన్ని కఠినంగా మోటివేట్ చేయండి. రిపీటెడ్ గా ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకోండి మీరు.
कांग्रेस के एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने पवन कल्याण पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें पैकेज स्टार करार दिया और कहा कि वो एक ऐसे अदाकार हैं जो सिर्फ पैसे की खातिर अदाकारी और सियासत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2019 में किसी बड़े प्रोड्यूसर के न होने की वजह से पवन कल्याण एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे थे। अनिरुद्ध रेड्डी के मुताबिक 2024 में चंद्र बाबू नायडू और लुकेश जैसे प्रोड्यूसर्स की मदद मिलने के बाद ही वो कामयाबी हासिल कर सके और अब वो अपनी ज़रूरतों के लिए नए प्रोड्यूसर्स की तलाश में है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पवन कल्याण माहाना पैकेज पर काम करने के आदी हो चुके हैं और उनकी सियासत अवामी मुफाद के बजाय माली फ़ायदे के गिर्द घूमती है। एमएलए ने सवाल उठाया कि तेलंगाना के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने के बाद पवन कल्याण किस मुंह से यहां इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिम्मत कर रहे हैं। उनके बकौल तेलंगाना के अवाम ऐसे लीडरों को कभी कबूल नहीं करेंगे जो दूसरे सूबों के इशारों पर सियासत करते हैं। పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నాడు, నరదిష్టి తెలంగాణ వాళ్ళని అన్నారు. నిలబడేటోళ్ళకి సిగ్గుండాలి. తెలంగాణ ప్రజలని మనని అందరినీ నరదిష్టి, మన కళ్ళు మంచి కాదని ఆయన పార్టీ నుంచి నిలబడ్డారంటే మీరు అర్థం చేసుకొని, అయినా కానీ ఆయన ఒక యాక్టర్. ఈ యాక్టర్స్ ఎట్లుంటారు, ప్రొడ్యూసర్స్ కోసం వెతుకుతుంటారు. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ పైసలు పెడితే యాక్టింగ్ చేస్తారు. 2019 లో వితౌట్ ప్రొడ్యూసర్ పోయినాడు, ఒక సీట్ గెలవలేదు. దాని తర్వాత 2024 లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ చంద్రబాబు నాయుడుని వెతుకున్నాడు, కో ప్రొడ్యూసర్ లోకేష్ ని వెతుకున్నాడు, గెలిచిండు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేసిండు, అక్కడ అయిపోయింది. మంత్లీ ప్యాకేజ్ స్టార్, పవన్ స్టార్ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు అది సరిపోతలేదు, నా కుటుంబం పెద్దది, ఎట్లా అని చెప్తే ఇప్పుడు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ ని వెతుకున్నాడు. ఆయన పేరు మోడీ. ఆ మోడీ ప్రొడక్షన్ లో ఇప్పుడు తెలంగాణకు రావాలని అనుకుంటున్నారు. మళ్ళా ఇది హై బడ్జెట్, కొన్నిసార్లు హై బడ్జెట్ 1000 కోట్లు పెట్టినవి కూడా 50 కోట్లు రావు. సో ఈ హై బడ్జెట్ గెలుస్తారా ఓడిపోతారా అనేది ప్రజలు నిర్ణయించాలి. ముందు ఆ ఈగో ఎందుకు ఆయన అడ్డం పెట్టుకుంటున్నా నాకు అర్థం. నేను కూడా ఆయన ఫ్యాన్, చిరంజీవి మూవీ చూస్తాను, బాలకృష్ణ మూవీలు చూస్తాను. डोरनकल से कांग्रेस के एमएलए रामचंद्र नाइक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदगान को बराह रास्त धमकियां देकर एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। एक मकामी तांडा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने खिले आम वार्निंग दी कि अगर अवाम ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब नहीं बनाया तो वो इलाके में कचरे का डंपिंग यार्ड दोबारा वापस ले आएंगे। उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाते हुए खुद को अवाम से ज्यादा जिद्दी करार दिया और लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की ताकि वो सिर्फ हुक्मरान जमात के निशान पर ही मेहर लगाएं। एमएलए के इस गैर जमहूरी रवैये और धमकी आमेज लहजे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। अपोजिशन लीडरों ने इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वोटरों पर दबाव डालने की शर्मनाक कोशिश करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवामी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि तरक्याती कामों के नाम पर वोट मांगने के बजाय एक मुंतखब नुमाइंदे का इस तरह धमकाना कहाँ तक दुरुस्त है। ఒక్క నిమిషం ఆపురియా. మా అక్కలు ఎవరు ఆడట్లేదంటే ఏదో మనసులో పెట్టుకున్నారు. మీ మనసులో ఏదైనా ఉంటే డంపింగ్ యార్డ్ మళ్ళీ వస్తుంది. తప్పకుండా తాండని డెవలప్ కరీనా దత్తతల్లి ఉతుకుంకో దత్తతల్లి ఉతుకుంకో చదివుకొని మాతేనా దత్తత తీసుకునే బాధ్యత నాది. ఎంకైనా గెలిచినా మీకు పని చేయను. ఎంకైనా నాకు నా మాట వింటే నా మాటను గౌరవిస్తే నేను వింటా. ఇక ఇది షరతు కాదు. నేను కూడా షరతే. కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని గెలిపించుకోరు. ఓకే రైట్, తర్వాత చూసుకుందాం. చలో. जिला खम की वारा बल्दिया के तहत वार्ड नंबर 14 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिली खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के एमएलए रामदास नाइक मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम चिल्लाते हुए पाए गए। कानून के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद किसी भी किस्म की तशहीर पर पाबंदी होती है, लेकिन एमएलए ने इन कवायद को बालाए ताक रखते हुए अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांगना जारी रखा। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और इंतखाबी अमले ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मकामी अवाम और अपोजिशन जमातों ने हुक्काम की इस खामोशी पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे जानिबदारी करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया हुक्मरान जमात के दबाव में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर इस वाक़ये की खबरें आने के बाद इलाके में सियासी बहस छिड़ गई है और मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले का फौरी नोटिस ले और ज़ाब्ता अखलाक तोड़ने वाले MLA के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। Ano, yan eh. Alam ya? पिटन चीरो के MLA गोदीम माओपाल रेड्डी के हालिया बयानात ने रियासत की सियासत में खलबली मचा दी है और उनकी दोबारा BRS में वापसी की कयास आराइयों को हुआ दी है। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर अवाम से अपील की कि वो BRS के उम्मीदवारों को वोट दें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। माओपाल रेड्डी, जिन्होंने कुछ अरसा कबल BRS छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, अब अपनी पुरानी पार्टी की हिमायत करके सबको हैरान कर रहे हैं। सियासी हलकों में इसे उनकी घर वापसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी मौजूदा पार्टी से नाराज नजर आते हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो BRS के निशान पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की जीत के लिए जी जान से मेहनत करें ताकि मकामी सतह पर तरक्की जारी रह सके। उनके इस बदले हुए लहजे ने कांग्रेस के मकामी लीडरों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जबकि BRS के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि आया वो बाकायदा तौर पर गुलाबी झंडा दोबारा थामेंगे या ये सिर्फ इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है। మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ రేపు జరిపితే 2 రోజులే ఉన్నది 11వ తారీఖు మీ సహాయ సహకారాలు ఇటు అవసరం మీ ఉన్న ప్రాంతాలలో మీ ప్రాంతాలలో ఉన్న క్యాండిడేట్ కు మీరు BRS క్యాండిడేట్ ని గెలిపించుకోవాలి, కొద్దిగా మీ సహకారం అందియాలని చెప్పి మొట్టమొదలు కోరడం జరుగుతూ ఉంది। తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలకు మనము నిరసనగా మన ప్రాంతంలో పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడ, ఈ పారిశ్రామిక వాడలో పనిచేస్తున్న ప్రతి కార్మికుడికి ఇబ్బందులు కలిగే విధంగా నిర్ణయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఎప్పటికప్పుడు మనము బీహార్ అనుకోండి, యూపీ అనుకోండి, ఇక్కడ నార్త్ ఇండియన్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియన్ అనుకోండి, మన లోకల్ అనుకోండి, చాలా ప్రాంతాల వారు మనకు ఈ ప్రాంతంలో 28 రాష్ట్రాలలో మన ప్రాంతంలో ఉన్నారు। మనం పోరాటం చేయవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ట్రేడ్ యూనియన్గా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పూర్తి మద్దతు మనం ప్రకటిస్తూ వ్యతిరేకిస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ను తప్పకుండా విజయవంతం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను ఆ రోజు పూర్తి క్లుప్తంగా నేను గిట మీ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను। కాబట్టి తక్కువ ఒక 5 నుంచి 10,000 మంది గ్యాదర్ అయ్యేటట్టు చూడండి। ట్రాన్స్పోర్టింగ్ కావాలంటే గిట పెడదాం కార్మికులకు। BRS के साबिक MLA गादारी किशोर ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए इंतहाई सख्त और धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया है, जिससे सियासी हलकों में तनाज़ो खड़ा हो गया है। उन्होंने एक अवामी इज्तिमा में पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि मेरा नाम सुनकर खुद वजीर आला रियोनथ रेड्डी भी कोई जवाब नहीं देते और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी भी खामोश रहते हैं। किशोर ने मकामी MLA पर भी शदीद जाती हमला किया और उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो होश व हवास में नहीं है। उन्होंने पुलिस अहलकारों को तंबी की कि वो हद से ज्यादा जोश दिखाने से ग्रेज करें, वरना उन्हें संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। साबिक MLA के इस जारहाना बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को बराह रास्त चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद हुक्मरान जमात के कारकुनों में सख्त गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने पुलिस से किशोर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది తీయని మాట్లాడుతున్నట ఎవరిరా నువ్వు నాకు చెప్పనిక ఎవరి నువ్వు అంటున్నా నేను బాజాబ్తా ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టుకున్న మీటింగ్ నేనేడా మీటింగ్ పెట్టాలో నువ్వు నాకు చెప్తావరా గొట్టంగానే నాకు అర్థం కాదు గాదర్ కిషోర్ గారిని చెప్తావా నీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారే గాదర్ కిషోర్ గారి పేరు చెప్తే సపోర్ట్ చేయడు నీ మంత్రి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ అయితే ఒక మాట మాట్లాడు నీ ఎమ్మెల్యే గారికి సోయే లేదు తాగి పత్రం తప్ప అధికారమే లేదు నీకు గిందంత గొట్టంగాడు నాకంటే ఎక్కువ చదువుకున్నట్ట నాకంటే ఎక్కువ చదువు వస్తుందా నాకంటే ఎక్కువ సెక్షన్లు చేస్తా నీకు ఎక్కువ గనక ఉత్సాహం ప్రదర్శిస్తే తస్మాత్ జాగ్రత్త అని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా దయచేసి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి।
साबिक MLA वल्लभनेनी विमसी ने अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट का दौरा किया और अवामी शिकायत के प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर को एक तफसीली अर्जदाश्त पेश की। उन्होंने मुतालबा किया कि बापोला पाडो मंडल के मिलवली गांव में जो 2400 घरों के मालिकाना हुकूक के कागजात तकसीम के लिए तैयार हैं, उन्हें फौरी तौर पर मुस्तहकीम के हवाले किया जाए। विमसी ने गिनवरम हवाई अड्डे की तौसी के दौरान अपनी जमीनें खोने वाले किसानों का मामला भी उठाया और कलेक्टर से गुजारिश की कि उन किसानों को अमरावती में वादे के मुताबिक प्लॉट्स अलाट किए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि बेघर अफराद और मुतासरा किसानों को इंसाफ फराहम करने में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तवील अरसे से अपने हुकूक के मुंतज़िर है। साबिक MLA ने इंतज़ामिया से अपील की कि उनके हल्के के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद किया जाए। कलेक्टर ने इन मुतालिबात को गौर से सुना और मुताल्लिका हुक्काम को इन मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करने का यकीन दिलाया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट के TR ने वज़ीर आला रियोनत रेड्डी पर कड़ी तनकीद करते हुए उनके खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है और उनके सियासी रवैये पर सवालात उठाए हैं। TR ने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी अवाम अपोजिशन हुकूमत से इंतखाबी वादों और फलाही स्कीमों की अमल दरामद के बारे में पूछते हैं तो वज़ीर आला जवाब देने के बजाय बदतमीज़ी और गाली गलोह पर उतर आते हैं। उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि रियोनत रेड्डी को सिर्फ दूसरों की तज़लील करना ही आता है और वो अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। TR के मुताबिक रियासत के नौजवान, किसान और ख्वातीन अपने हुकूक और स्कीमों के फंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और सियासी इंतकाम तक महदूद है। उन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आला का गैर पार्लिमानी लब व लहजा उनकी बौखलाहट का सबूत है और अवाम इसे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। BRS लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत गालियों के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो दे ताकि रियासत के गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। इस बयान ने रियासत की सियासी फिजा में गर्मा गर्मी पैदा कर दी है और दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। ఆయన పేరు అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, లాగుల తొండల రెడ్డి. ఎందుకంటే వేరే శాతం అయితే లేవు. నువ్వు గట్టిగా తినవనుకో ఏమైనా రైతు బంధు మరి ఫిబ్రవరి 9 తారీఖు వచ్చిందంటే ఈ లాగుల తొండలు ఇచ్చి పెడతా అంట. ఏమాయ మరి తులం బంగారం ఏమాయంటే నీ కుట్లు వీకి గోటీలా ఆడతా. ఏమాయరా అయ్యా మరి 2500 ఇస్తాను ఏం సంగతి అంటే నీ పేగులు తీసుకొని మెడలు వేసుకుంటా. ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రిని చూసినా పాకిస్తాన్ అన్న ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసినాం, అటనక చంద్రబాబుని చూసినాం, అటనక రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిండు, అటనక రోషయ్య గారు వచ్చిండు, అటనక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చిండు, అటనక కేసీఆర్ అన్న వచ్చిండు, అటనక దీని వచ్చిండు। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रियोनत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में लगने वाली आग कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि अवोट के एवज नोट केस में रियोनत रेड्डी रंगे हाथों पकड़े गए थे और अब जजों के सामने सबूत मिटाने के लिए दानिस्ता तौर पर इस रिकॉर्ड रोम को आग लगवाई गई है। हरीश राव के मुताबिक रियोनत रेड्डी को इस बात का खौफ है कि उनके खिलाफ मौजूद शवाहिद उन्हें दोबारा जेल भेज सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी निगरानी में इस लेबॉर्ट्री को निशाना बनवाया। उन्होंने हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और इसे वजीर आला की डायरेक्शन का नतीजा करार दिया। बीआरएस लीडर ने सख्त अल्फाज में कहा कि सबूत मिटाने की उन कोशिशों के बावजूद रियोनत रेड्डी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे और उन्हें अपने जराइम की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उन्होंने इस पूरे वाक़ये की आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि सच्चाई अवाम के सामने आ सके। రేవంత్ రెడ్డి ఓటుకు నోటు కేసులో ఒక దొంగ ఓటుకు నోటు కేసులో దొరికిపోయింది। ఆయన జైలుకు వెళ్ళే టైం దగ్గరికి వచ్చింది। నేను జైలుకు పోతానేమో అని సాక్ష్యాలు దొరకకుండా హైదరాబాద్ లో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ను అంటుపెట్టిండు। ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఇవాళ సాక్ష్యాలు దొరకకుండా పోలీసులకు చెప్పి ఆయన్నే దాన్ని అంటుపెట్టించే ప్రయత్నం చేసిండు। హైదరాబాద్ లో హైడ్రా పెట్టిండు, పేదల బతుకులు కూర్చిండు, పేదల ఇల్లు కూర్చిండు। ఇవాళ జైలుకు పోకుండా ఉండడానికి సాక్ష్యాలను దహనకాండ చేసిండు। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి డైరెక్షన్ లో ఇది పోలీసులు చేసినటువంటి దహనకాండ। ఏదో ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని
ఇదేదో అనుకోకుండా జరిగిందని నమ్మించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. బట్ ఏది చేసినా రేవంత్ రెడ్డి 50 లక్షలతో ఒక ఎమ్మెల్యేను కొంటూ పట్ట పగలు దొరికిన దొంగ ఈ రేవంత్ రెడ్డి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఏనాటికైనా జైలుకు పోక తప్పదు, శిక్ష పడక తప్పదు. जिला जगतियाल के वार्ड नंबर 46 में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर की रहाइशगाह पर गैर कानूनी तौर पर शराब की बोतलें उतारते हुए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारकुनों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। MIM कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि ये शराब वोटरों में तकसीम करने के लिए लाई गई थी और खुद उम्मीदवार ने भी एतराफ किया कि ये दूसरों के लिए मंगवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने घर के अंदर तलाशी लेने से ग्रेज किया। मकामी लोगों और मुखालिफ जमात के कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया सिर्फ अपोजिशन को निशाना बना रही है, जबकि हुक्मरान जमात की खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़ये के बाद इलाके में काफ़ी देर तक नारेबाजी और कशीदगी का माहौल रहा, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस की इजाफी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू में करने की कोशिश की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। हुक्काम ने मामले की संगीनी को देखते हुए तहकीकात का यकीन दिलाया है ताकि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जिला जंगांव के पालाकोरत्ती मंडल में वाक़े विलमेडी गांव में इस वक्त अजीब व गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब बंदरों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान शदीद लड़ाई छिड़ गई। सैकड़ों की तादाद में बंदर एक ही जगह आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बंदरों के इस गैर मामूली तसादुम और चीखो पुकार की वजह से देहातियों में सख्त खौफ व हरास फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में महसूर होने पर मजबूर हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि बंदरों की ये टोलियां अक्सर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इस तरह की आपसी जंग ने पहली बार पूरी बस्ती को निशाने पर ले लिया है। परेशान हाल देहातियों ने महकमा जंगलात और मुताल्लिका हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि उन्हें बंदरों की इस दहशत से निजात मिल सके। गांव वालों का मुतालबा है कि इन बंदरों को पकड़कर दूर दराज के जंगलाती इलाकों में मुंतकिल किया जाए ताकि इंसानी आबादी महफूज रह सके। रवा साल ओमन आशिकान यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर मुल्क भर के होटलों और रिजोर्ट्स में बुकिंग के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जिसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 175% तक इजाफा देखा गया है। मुख्तलिफ होटल बुकिंग ऐप्स और वेबसाइट्स के जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक अभी इस दिन में 6 रोज़ बाकी हैं, लेकिन मुल्क के बड़े शहरों में ज़्यादातर होटल पहले ही मुकम्मल तौर पर बिक हो चुके हैं। ख़ास तौर पर सियाहती मकामात और पुरतयुश होटलों में नौजवान जोड़ों की जानिब से एडवांस बुकिंग में गैर मामूली तेज़ी आई है, जिसकी वजह से कमरों के किरायों में भी नुमाया इजाफा कर दिया गया है। माहिरीन मईशत का कहना है कि इस बार लोग अपनी पसंदीदा जगहों को महफूज बनाने के लिए हफ्ता भर पहले ही से मंसूबा बंदी कर रहे हैं ताकि आखिरी लम्हात की परेशानी से बचा जा सके। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और बंगलोर जैसे बड़े शहरों में होटल मालिकान ने इस खास दिन के लिए खुसूसी पैकेजेस और डिनर डील्स भी मुतारफ करवाई हैं, जो नौजवानों में काफ़ी मकबूल हो रही है। सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबे में आई ये अचानक तेज़ी कारोबारी लिहाज से एक मुस्बत अलामत करार दी जा रही है, जिससे मईशत को बड़ा फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। YSR कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अंबती राम बाबू को पिटभीपुरम पुलिस ने PT वारंट पर राजमुंदरी से गंटूर की अदालत में पेश किया।
पुलिस ने उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत लाया, जहां पेशी के मौके पर वहां मौजूद पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और अंबती राम बाबू ने हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि उनके खिलाफ हाल ही में मेडिकल कॉलेजों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी और फराइज की अंजामदही में मुदाखलत करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में हाजिरी के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। पुलिस का मौक़िफ़ है कि एहतजाज के दौरान साबिक वज़ीर का रवैया कानून के खिलाफ था, जबकि उनके हामी इसे सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद केस की मज़ीद समाअत को मुलतवी कर दिया और अंबती राम बाबू को दोबारा पुलिस की निगरानी में रवाना कर दिया गया। ఎక్స్క్లూజివ్గా నేను చూపిస్తున్నాను అంబటి రాంబాబు ఆయన అక్కడి నుంచి ఈ కోర్టుకి కోర్టు వెళ్ళారు సార్ ఇటు श्री सीलिम के मुक़द्दस मकाम पर मंदिर इंतज़ामिया के रवैये के खिलाफ शेव सौमियों ने शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया है। पीर की सुबह 5 बजे से ही अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद कतारों में खड़ी थी, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद दर्शन की इजाज़त न मिलने पर ज़ायरीन का सब्र लबरेज हो गया। हुक्काम की लापरवाही और बदनज़मी से नाराज़ होकर कई शेव सवामी मंदिर के हिफाजती गेट पर चढ़ गए और बाहर निकलकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाज करने वाले अक़ीदतमंदों का इल्ज़ाम है कि आम ज़ायरीन को घंटों इंतज़ार करवाया जा रहा है, जबकि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से आम कतारें ठप होकर रह गई है। मंदिर के अहाते में काफ़ी देर तक कशीदगी का माहौल रहा और सौमियों ने इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर दर्शन की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। पुलिस और मंदिर के सिक्योरिटी अमले ने मुश्तइल मुजाहिरीन को समझाने और सूरत-ए-हाल को काबू में करने की कोशिश की ताकि मजहबी रसूमात में खलल न पड़े। सिंगारेड्डी जिला में एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां शराब के नशे में धत एक शख्स ने बिजली के ट्रांसफार्मर को खिलौना समझकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तांडोर से ताल्लुक़ रखने वाले निरसी महलो नामी इस शख्स ने नशे की हालत में बिजली की जिंदा तारों को पकड़ लिया, जिसके नतीजे में इसे जोरदार करंट लगा और वो बुरी तरह झुलसकर जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को इत्तला दी, जिसके बाद तिब्बी अमले ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। मुतासरा शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसे मजीद बेहतर इलाज के लिए सिंगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा सिर्फ और सिर्फ शराब के बेतहाशा नशे और लापरवाही की वजह से पेश आया, जिसने एक इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। पुलिस ने इस वाक़ये का इंदराज कर लिया है और अवाम से अपील की है कि वो बिजली की तनसीबात से दूर रहें, क्योंकि ऐसी कोशिशें जानलेवा साबित हो सकती है। जिला खम के कोनीजरुला मंडल में फसलों के लिए पानी की अदम फराहमी के खिलाफ किसानों ने सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी। गोबागुरत्ती के मकाम पर किसानों ने रास्ता रोको करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नागार्जुना सागर से पानी न छोड़े जाने की वजह से उनकी मकई की खड़ी फसलें खुश्क होकर बर्बाद हो रही हैं। मुजाहिरीन ने मकामी सियासी कायदीन और मुतल्लिका हुक्काम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बार बार की अपीलों के बावजूद आबपाशी के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसानों ने अलिफास्कोरपल पाडो शाहरा पर बैठकर धरना दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एहतजाजी किसानों का मुतालबा है कि उनकी मेहनत को ज़ाय होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर नहरों में पानी छोड़ा जाए, बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज को मजीद वसअत देंगे। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस और इंतज़ामिया के हुक्काम ने किसानों को यकीन दिलाया कि वो आला हुक्काम से बात करके पानी की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे, जिसके बाद मुजाहिरीन ने आर्जी तौर पर धरना ख़त्म किया।
అది పెట్టి